ادویات کی خریداری میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں 22 کروڑ 20 لاکھ روپے خردبرد کا انکشاف محکمہ صحت فیصل آباد نے سال 2019 سے 2020 میں ادویات کی خریداری پر انکوائری شروع کر دی۔ ریٹائرڈ ایم ایس سی ای او ہیلتھ سمیت 19 افسران 12 فروری کو طلب۔ دیکھتے ہیں عزادار حسین کی یہ رپورٹ۔ ماتحت علاج گاہوں میں مالی سال 2019-20 میں ادویات کی خریداری میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے اور محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے تقریباً 22 کروڑ روپے کے مشکوک اخراجات سے متعلق انکوائری شروع کر دی ہے۔ ابتدائی انکوائری رپورٹ کے مطابق 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی ادویات کا ریکارڈ جمع نہیں کروایا گیا۔ اسی طرح 3 کروڑ 90 لاکھ روپے کی ادویات مہنگی قیمت پر خریدیں گی۔ 7 کروڑ 90 لاکھ روپے کی ادویات کی خریداری کے لیے رجسٹرڈ فرموں سے معاہدے پر عمل درآمد نہ کروایا جا سکا، جبکہ 3 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ادویات فراہم نہ کرنے والی فرموں کو بلیک لسٹ نہیں کیا گیا۔ 19 محکمہ صحت نے کروڑ روپے کی ان بے ضابطگیوں پر جواب طلبی کے لیے 19 افسران اور ڈاکٹرز کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ان میں سے اکثر ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جبکہ ایک ایسے ڈاکٹر کو بھی نوٹس بھجوایا گیا ہے جو فوت ہو چکے ہیں۔ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ بائک چلاتے ہیں یا میزائل، وہ بھی ان گائیڈڈ، ذرا سی ٹکر ہو جائے تو ہڈی نہیں ٹوٹتی، جان ہی جاتی ہے۔ لیکن اب نوجوانوں کی جان بچانے کا مشن سنبھال لیا ٹریفک پولیس نے۔ ان گائیڈڈ میزائلوں کا سراغ لگانے کے لیے سپیڈ چیکنگ کیمرے نصب۔ تیز رفتار موٹر سائیکل سوار فوری پکڑا جائے گا۔ تفصیلات طیب مقبول کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈرائیونگ لائسنس ملتا نہیں، پاؤں زمین پر ٹکتا نہیں، موٹر سائیکل چلانے کے اصولوں سے ناواقف کم عمر بچے بھی بن جاتے سپیڈ کے شاہکار۔ اب قیمتی جانوں سے کھیلنے والوں کو نکیل ڈالنے کا ہو گیا انتظام۔ فیصل آباد میں تیز رفتار موٹر سائیکلوں کا سراغ لگانے کے لیے سپیڈ چیکنگ کیمرہ نصب۔ ون ویلنگ اور 60 سے اوپر سوئی لے جانے والی موٹر سائیکل سوار کے خلاف مقدمہ ہوگا درج۔ پہلے مرحلے میں کنال روڈ سمیت 3 بڑی شاہراہوں پر سپیڈ گنز نصب کر دی گئیں۔ سی ٹی او فرحان اسلم نے کنال روڈ پر سپیڈ گن سے بائکس کی حد رفتار کو جانچا۔ سی ٹی او نے حادثات کا بڑا سبب تیز رفتاری کو قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بائک رائیڈرز کو حادثات سے بچانے کے لیے موٹر سائیکل کی حد رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک محدود کر دی ہے۔ تیز رفتاری سب سے بڑی وجہ ہے حادثات کی، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت سپیڈ لمٹ فکس کر دی گئی ہے۔ تو بائکس کی جیسے 60 کلومیٹر پر آور ہے، تو اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے مختلف سڑکوں پہ لیزر گن لگا دی ہیں۔ یہ فیصل آباد میں ہمارے پاس 3 ہے سپیڈ لمٹ چیک کرنے کے لیے۔ تو اس کے ذریعے ہم سپیڈ لمٹ چیک کرتے ہیں، جو اس کے سکرین پہ ایکسیڈ کرتی ہوئی آتی ہے اس کو موقع پہ چلان کر رہے ہیں، اور اگر بہت زیادہ ڈفرینس آ جاتا ہے تو وہ جیسے اگر 100 پہ کوئی بندہ جا رہا ہے تو وہ تو دوسروں کی زندگی کے لیے ویسے ہی یہ خطرہ بن رہا ہے، تو اس پہ FIR بھی درج کر رہے ہیں۔ خود بھی بچیں اور دوسروں کی جان بھی محفوظ بنائیں۔ شہری موٹر سائیکل حد رفتار میں چلائیں، نہیں تو حوالات کی ہوا کھانے کو تیار ہو جائیں۔ سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد نے شہریوں کو محفوظ سفر مہیا کرنے کی ٹھان لی۔ کیمرامین رانا ادریس کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ ضلع جنگ میں 3 شوگر ملز بھی مٹھاس کی کڑواہٹ کو ختم نہ کر سکیں۔ ایک ہفتے میں مہنگی چینی مزید 5 روپے کلو مہنگی۔ پرچون اور گلی محلوں کی دکانوں پر چینی 155 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ سٹی صدر انجمن تاجران نے چینی کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد رمضان مرزا کی رپورٹ میں۔ ماہ رمضان سے قبل ہی مہنگائی کا طوفان، چینی کی قیمت کو فل سٹاپ نہ لگ سکا، نان سٹاپ اضافہ جاری۔ ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں 5 روپے کلو کا مزید اضافہ۔ 2 ماہ میں پرچون میں 125 روپے میں ملنے والی چینی 155 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ شہری بلبلا اٹھے، ہر چیز مہنگی ہے، غریب کو کہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ چینی کی قیمت تقریباً 4-5 دن میں 15 روپے کلو بڑھ گئی ہے سر۔ یہ غریب آدمی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو گئی ہے۔ سٹی صدر انجمن تاجران حاجی محمد ہاشم کے مطابق چینی کا 50 کلو کا تھیلا 250 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ چینی کی بڑھتی قیمتوں پر اظہار تشویش، چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے پر زور دیا۔ جس دن آپ کے ٹی وی پر ٹکر چلا کہ حکومت نے برآمد کی اجازت دے دی ہے، اسی دن سے چینی کے ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا اور کچھ شوگر ملیں جو ہے نا نو سیل پہ چلے گئی، جس کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی تو شوگر مل کر رہی ہے۔ حکومت اس کو کنٹرول کرے، اگر کنٹرول نہیں کرے گی تو یہ 200 روپے بھی جا سکتی ہے۔ تاجر کہتے ہیں حکومت چینی کو برآمد کرنے کی بجائے ملکی ضروریات کے مطابق فیصلہ کرے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ اور ناظرین، مصنوعی مہنگائی نامنظور، شہریوں نے چکن سے منہ موڑ لیا۔ قیمت ایک ہفتے کے دوران 40 روپے فی کلو تک نیچے آ گئی۔ دکاندار دن بھر مکھیاں اڑانے لگے۔ چکن فروش کہتے ہیں کہ گوشت سرکاری ریٹ سے بھی سستا بیچ رہے ہیں، مگر خریدار نہیں آ رہے۔ تفصیلات علی نارو کی رپورٹ میں دیکھیے۔
शहरियों ने ब्रायलर मुर्गी के गोश्त से मुंह मोड़ लिया या वजह कुछ और। गोश्त की कीमत रवां हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई, फिर भी खरीदारी ना होने के बराबर रिकॉर्ड की जा रही है। दुकानदारों का कहना था कि सरकारी रेट से सस्ता गोश्त बेच रहे हैं, इसके बावजूद खरीदार नहीं है। पूरी मार्केट सुबह से ही ग्राहकों की मुंतजिर है। गुज़श्ता दिनों चिकन की बढ़ी हुई कीमतों का असर अब तक है। भाई खरीदार तो मौजूद कोई नहीं है। 40 रुपए रेट कम होने की वजह तो मार्केट बिल्कुल खाली है। ग्राहक कस्टमर कोई नहीं। 50 रुपए रेट असी खुद कम लाया होया, मगर कस्टमर कोई नहीं आ रहा। गोश्त मजीद सस्ता होने की उम्मीद है। खरीदार वापस मुर्गी के गोश्त का रुख करेंगे। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। के गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे ने फैसलाबाद के ताजरों की मुश्किलात बढ़ा दी। कहते हैं कारोबार पहले ही नहीं, किराए बढ़ने से चीजों की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। ट्रांसपोर्टर्स की जानब से किराए में इजाफे पर ताजरों की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से बढ़ते किरायों ने सामान की तरसील महंगी बना दी है। ताजर कहते हैं जब पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हों तब किराए कम नहीं होते, मगर महंगी होते ही किराए बढ़ जाते हैं। कारोबार पहले ही ना होने के बराबर है। दूसरे शहरों से आने वाले खरीदारों के लिए भी किराए बढ़ने से मुश्किलात पैदा होंगी। ताजरों की इंतजामिया से ट्रांसपोर्ट के किराए कम करवाने की अपील। अभी थोड़ा सा इजाफा हुआ है और साथ ही इन्होंने किराए 10 से 15% बढ़ा दिए हैं। हम इनसे परजोर मुतालबा करते हैं और इंतजामिया को भी कहते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए और किराए में कमी की जाए। हमारे कारोबार जो हैं बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। कुव्वत खरीद नहीं है ग्राहक की, वो कैसे टिकट लेके आएगा। ताजरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा थोड़ा हुआ है और किराए ज्यादा बढ़ाए गए हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। सस्ता सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर, रेलवे ट्रेन की किराए में 5% इजाफा कर दिया गया। इतलाक 5 फरवरी से होगा। किरायों में इजाफे का इतलाक तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। रिपोर्ट कर रही हैं अवैस अली। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात सस्ते सफर पर भी पड़ने लगे। रेलवे हुकाम ने तमाम क्लासेस की टिकटों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे का इतलाक 5 फरवरी से होगा। इजाफी तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस की टिकटों में 5% इजाफा होगा। किरायों में इजाफे का इतलाक सिल्वन सर्विस और तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। मुसाफिरों का कहना है कि सफर को महंगा करके मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। पहले भी आए रोज महंगाई में इजाफा हो रहा है। हुकाम शहरियों के रिलीफ के लिए मिस्बत पॉलिसी बनाए। जो सस्ता ट्रांसपोर्ट का जरिया है, या आने जाने के लिए लोगों को कह ले कि सस्ती सहूलत है, उसको महंगा किया जा रहा है तो मुश्किलात तो बढ़ेंगी ना। ऐसे गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को मजीद बेहतर करे, उनको कम से कम शरह रेट पे लेके आए। मुसाफिरों ने आला हुकाम से किरायों में इजाफा फिलफौर वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में शहरों को खूबसूरत बनाने का मिशन। मेन बाजार हो या चौक चौराहे, हर तरफ तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया की यलगार। अरसा दराज से कायम पुख्ता और आर्जी तजावुजात मिसमार कर दी गई। मोहम्मदी चौक में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के ऐलान के बाद अजखुद तजावुजात के खात्मे का सिलसिला भी जारी। डिप्टी कमिश्नर ने भी सफाई और तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। चिन्योट की फर्नीचर मार्केट मेन बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। शहर की अहम शाहराहों से तजावुजात खत्म करवा दी गई। सीईओ म्यूनिसिपल मिर्जा जफर बेग का कहना था कि फर्नीचर मार्केट, चिन्योटी रोड और दीगर बाजारों में ऑपरेशन किया। तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का शहर का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर अमल का जायजा। फैसलाबाद में समनाबाद मोहम्मदी चौक के इलाका वकील अज खुद तजावुजात खत्म करवाने लगे। अहले इलाका ने घरों के आगे बने थड़े खुद तोड़ दिए। फाटा की जानिब से 4 फरवरी को ऑपरेशन का ऐलान किया गया था। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई और तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन की सूरत हाल का जायजा। चांदियावाला में सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी अरशद गफूर की जेर निगरानी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। लकड़ मंडी में अरसा दराज से कायम पुख्ता और आर्जी तजावुजात गिरा दी गई। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की नफरी भी तैनात। सामान उठाओ, रेडी हटाओ। तजावुजात माफिया ने ऑपरेशन के वक्त सामान समेटो की पॉलिसी अपना ली। इंतजामिया के चक्कर के बाद ठेले माफिया को लेते हैं दोबारा से सड़कों पर इशलकार। पुख्ता क्या इंतजामिया आर्जी तजावुजात का भी खात्मा ना करवा सकी। टोबा टेक सिंह और जंग इंतजामिया दुकानदारों के आगे बेबस नजर, आगे दौड़ पीछे छोड़। जंग इंतजामिया इंसदाद तजावुजात मुहिम का तसलसल बरकरार ना रख सकी। तहसील चौक जुडिशल कॉलोनी की दीवार के साथ ठेले दोबारा लग गए। ठेलों और ख्वांचा फरोशों को मुनासिब जगह मुंतकिल ना किया जा सका। इंतजामी ठेलों पर मुश्तमिल लेडी बाजार लगवाने में भी नाकाम रही। रेडियां हटाएंगे, रेडियां फिर वापस आगे लग जाएंगी, निजायज तजावुजात फिर होते रहेंगे। इसका बेहतरीन और मुकम्मल हल यही है
कि पहले अपने जो वासी हैं शहर के उनको रोजगार दिया जाए, रोजगार देने के बाद अगर वो नजायज तजावुज़ करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दुकानदारों ने नाकाम बना दिया। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया मुस्तकिल तजावुजात के बजाय आर्जी तजावुजात भी खत्म न करवा सकी। दुकानों के शटर और मुस्तकिल तजावुजात अपनी जगह मौजूद, तजावुजात के खात्मे के ख्वाब पर दुकानदारों ने पानी फेर दिया। इंतजामिया बेबस। झंग और टोबा टैक्सिंग इंतजामिया तजावुजात के खात्मे में नाकाम। ऑपरेशन के बाद रेहड़ीबानों और ठेले वालों का दोबारा से सड़कों पर राज, ट्रैफिक मसाइल भी खत्म न हो सके। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का दौरा झंग। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार ने जिले भर में ज्यादती के केसेस पर ब्रीफिंग दी। ट्रांसजेंडर्स के मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। तफसीलात अवैस खान की रिपोर्ट में देखिए। जंग में चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने जंग का दौरा किया, जहां उन्हें डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी ने जिला में बच्चों और लड़कियों से ज्यादती के केसेस पर ब्रीफिंग दी। हिना परवेज भट्ट ने बरियामवाला में 3 साला बच्ची से गैंग रेप के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। पुलिस की फौरी कार्रवाई और मुलजिमान की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार किया। बहुत से मुलजिमों को ये लगता था कि हमें तो किसी ने नहीं पकड़ना, लेकिन ये हमारी टेस्ट केस है। हमारी झंग पुलिस को इस बात का सलूट जाता है, पूरी इनकी टीम को, कि इन्होंने मुलजिमों को पकड़ा है और उन्होंने टेस्ट केस बनाए हैं। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि खवातीन, बच्चों और ट्रांसजेंडर्स पर जुल्म पंजाब हुकूमत की रेड लाइन है। ऐसे नासिर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने जंग पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि डीपीओ बिलाल इफ्तिखार की क़ियादत में पुलिस ने मिसाली काम किया है। मैडम सीएम ने अपनी पहली स्पीच में ये क्लियरली कहा था कि खवातीन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद, किसी भी किस्म का वायलेंस मेरी रेड लाइन है। मैंने बिलाल साहब को स्पेशली झंग में देखा है कि ना सिर्फ खवातीन बल्कि बच्चियां, चाइल्ड अब्यूज़, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी सबको ये प्रायोरिटी देते हैं। नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियों को फरोग दिया जाएगा। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि जिनसी जराइम में मुलविस तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आपको बताएं कि कैंसर से मुतल्लिक आगाही का आलमी दिन। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग और तहसील हेडक्वार्टर्स में कैंसर बारे आगाही और सेमिनार्स का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 4 फरवरी कैंसर से मुतल्लिक आगाही का आलमी दिन। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में विल वुमेन क्लिनिक पर कैंसर बारे आगाही, खातन में छाती के सरतान से मुतल्लिक स्क्रीनिंग बारे भी आगाह किया गया। तिबी माहिरीन ने बताया कि कैंसर एक काबिल इलाज मर्ज है। PHQ हॉस्पिटल में वेल वुमेन क्लिनिक के नाम से एक सेंटर चल रहा है, जिसमें तमाम खवातीन को हम चाहते हैं कि वो लोग आएँ और अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। ना करे किसी का पॉजिटिव आ जाए तो उसकी फौरन से इलाज उसका मुमकिन होता है और वो जल्द ही जल्द उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। जनवरी में हम लोगों ने तकरीबन 2500 लोगों की हमने स्क्रीनिंग की है, जिसके अंदर से हमारे जो 5 केसेस हैं वो पॉजिटिव आए हैं, उनको हमने लाहौर भेजते हैं। जो केसेस लाहौर जाते हैं फिर उनके लिहाज से रिपोर्ट उनकी आती है, फर्दर हम प्लान आउट करते हैं। शोरकोट में कैंसर डे की मुनासबत से तहसील हेडक्वार्टर्स में सेमिनार का एहतमाम डॉक्टर सफदर, डॉक्टर रेहान तारिक, डॉक्टर फहद रसूल, डॉक्टर जिशान मजहर की शिरकत। डॉक्टर मोहम्मद सफदर का कहना था कि कैंसर इंतहाई खतरनाक मर्ज है, जिससे बचाव के लिए जरूरी है कि हर शख्स 6 माह बाद टेस्ट करवाए। कैंसर एक इंतहाई मोहलिक और खतरनाक किस्म की मर्ज है, तो इसका जो है ना हर 6 माह बाद या 1 साल के बाद मरीज अपने तमाम इब्तदाई टेस्ट करवाए ताकि उसकी जल्दी शनाख्त हो जाए। तिबी माहिरीन का कहना था कि इलाज से एहतियात बेहतर है। कैंसर से बचाव के लिए साल में एक बार इब्तदाई टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि वक्त पर तशखीस हो जाए।